था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, I'm so happy to see you all through this program. और इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है. God is here in our midst. परमेश्वर यहाँ है हमारे बीच में. He's got all the blessings you need. और आपको जो भी आशीषें चाहिए उसके पास है. Are you weak in your heart? क्या आप आपके हृदय में कमजोर हैं? In your body? आपके शरीर में कमजोर हैं? God has come in the midst of us with all kinds of blessing you need. और परमेश्वर हमारे बीच में आया है उन सारी आशीषों को लेकर जो आशीषें आपको चाहिए. Shall we read one beautiful verse from the Bible? आइए हम बाइबल में से बहुत ही सुंदर वचन को पढ़ेंगे. Isaiah 41 verse 10. यशायाह उसका 41वां अध्याय 10वां वचन. The Lord says, प्रभु कहता है, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ. इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ. मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा. In our day-to-day life, we have so many problems. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी कई समस्याएं होती हैं. We are afraid to meet them. और उनका सामना करने में हम डरते हैं. Oh, how can I pay all these debts? कि मैं कैसे अपने इन कर्जे को चुकाऊं. I don't have enough income. मेरे पास इतनी मासिक आय भी नहीं है. How can I get my daughter married? I don't have any money. मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं? मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है. I don't have a good job. और मेरे पास अच्छी नौकरी भी नहीं है. How can I manage every day in my life? कैसे मैं अपने जीवन का हर दिन आगे चलाऊं? All kinds of fears. और इस प्रकार के कई सारे डर होते हैं. We are tormented because of that. और इन्हीं डर की वजह से हम सताए जाते हैं. You may be in the same position. हो सकता है आपकी भी दशा ऐसी हो. But read this verse again and again. लेकिन आप इन वचनों को बार बार पढ़ें. This is a promise of God. ये परमेश्वर का वायदा है. He says clearly, वो स्पष्ट रूप से कहता है, my child, मेरे बच्चों, fear not. मत डरो. I am with you. देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ. I will strengthen you. मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा. I'll uphold you मैं तुम्हें थामे रहूंगा. with my righteous right hand. अपने धर्ममय दाहिने हाथ से. When God says that, जब परमेश्वर ऐसे कहता है, what more you need? तो अब और क्या आपको चाहिए? So today you are going to get a blessing from the God of Jacob, God of Abraham, God of Isaac. और फिर आज जो है आप याकूब के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर से आप आशीष पाएंगे. Receive all the blessing तो सारे आशीषों को आप ले लें and be blessed. और आशीष पाएं. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.
promise pulling you, that His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, joy comes with the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. My precious sisters, मेरी प्रिय बहनों, Colossians chapter 4 verse 12 says, कुलुसियों 4:12 इस तरह से कहता है, stand perfect and complete in all the will of God. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। Every one of you should do the will of God through this EPG prayer. इस यस्सर प्रार्थना समूह प्रार्थना के द्वारा आप प्रत्येक जनों को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा। John 15:16 says, यूहन्ना 15:16 इस तरह से कहता है, God has chosen every one of you प्रभु ने आप प्रत्येक जनों को चुना है and appointed you to give fruit. और आपको नियुक्त किए हैं कि आप फल दे Our fruit should remain. और हमारा जो फल है हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। That kind of ministry God has given in your hand. प्रभु ने इस तरह की सेवकाई आपके हाथों में दिए हैं। John chapter 1 verses 4 and 5 if you read, भजन संहिता 1, 4 और 5 इस तरह से कहता है, Jesus, there is life, यीशु में ज्योति है and the life was the light of men. और जो जीवन है मनुष्य का जीवन है। When the light comes into our soul, जब ये जो ज्योति हमारे जीवन के अंदर आती है, He removes all the darkness. प्रभु सारे अंधकार को दूर कर देते He हैं। removes all the darkness. प्रभु सारे अंधकार को दूर कर देते And हैं। same John chapter 1 verse 9. यूहन्ना 1:9 इस तरह से कहता है, Jesus was the true light. और यीशु वही ज्योति है True light. और वही सच्ची Which ज्योति gives है light to every man. और वो ज्योति सब मनुष्य को ज्योति देती है। The Lord will give you that light. प्रभु वही ज्योति आपको देंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 6 if you read, 2 कुरिन्थियों 4:6 इस तरह से कहती है, when you start shining, जब आप चमकना शुरू करेंगे, face of the Lord will be seen in your face. प्रभु का जो चेहरा है आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देगा। What is that light? और वो ज्योति क्या है? Jesus Christ himself is the light. और वो स्वयं यीशु मसीह ज्योति के रूप में आए See हैं। what a glorious life it is to live with Jesus. कितना महिमामय जीवन है यीशु को देखना। When we are close to the Lord Jesus Christ, और जब हम प्रभु यीशु के निकट हैं, He will remove all darkness from our life. प्रभु हमारे जीवन से सारे अंधकार को दूर कर देंगे It will be full of the light of Jesus. और वो पूरा यीशु की ज्योति से भर जाएगा। John 8:12 if you read, अगर आप यूहन्ना 8:12 को पढ़ेंगे, Jesus said, यीशु कहते हैं, I am the light of the world. और मैं इस संसार की ज्योति हूँ He who follows me shall not walk in और darkness, वो जो मेरा पीछे अनुगमन करते हैं वो कभी अंधकार में नहीं चलेंगे, but have the light of life. उनके पास जीवन की ज्योति होगी। If you read 1 Corinthians chapter 5, अगर आप पहले कुरिन्थियों 5 को पढ़ेंगे, 6 and 7, 6 और 7 को, a little leavens the whole lump. और थोड़ा सा जो खमीर है पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। Therefore, इसीलिए purge out the old leaven that you may become a new lump. इसलिए आपके जीवन के अंदर जो पुराना खमीर है उसको बाहर निकालिए और नया व्यक्ति बन जाइएगा। Little leaven, old leaven should not be there in our life. और थोड़ा सा भी खमीर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए Little unwanted talk, और छोटा सा भी जो अनचाहा जो बात है नहीं होनी चाहिए it should not be there. और वो हमारे जीवन में नहीं It होनी will चाहिए spoil the whole spiritual life in your life. और वो आपके पूरे आत्मिक जीवन को नाश कर देगा। How much we have to be careful to be in the light. इसीलिए ज्योति में रहने के लिए आपको कितना ध्यान पूर्वक रहना होगा।
So, how to come out of this darkness? इसलिए इस अंधकार से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? Read Romans chapter 6, verse 8. रोमियो 6:8 को पढ़िए। We have to die with Christ. और हमें मसीह के साथ मरना होगा And we can walk with Him and live with Him. और आप उसके साथ चल सकते हैं और उसके साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। We can walk with Him and live with Him and speak to Him. आप उससे बात कर सकते हैं, चल सकते हैं और उसके साथ जी सकते हैं। Secondly, और दूसरा, to bear the burdens of other people. और हमें दूसरों के लिए बोझ उठाना होगा। If you read Matthew 11:28, अगर आप मत्ती 11:28 को पढ़ेंगे Jesus is calling every one of us. और यीशु हम प्रत्येक जनों को बुलाते Do you हैं, have burden? क्या आपके पास बोझ है? Come unto me. मेरे पास आओ, Come unto me. मेरे पास आओ, I will deliver you. मैं विश्राम दूंगा, I will give you rest. मैं छुटकारा दूंगा। In the same way, उसी तरह if you read Galatians chapter 6, verse 2, अगर आप गलतियों 6:2 को पढ़ेंगे, the same thing the Lord wants every one of us as EPG member or leader should do. प्रभु चाहते हैं कि हम इससे प्रार्थना समूह के जो अगुवा और सदस्य हैं सभी के पास ऐसा गुण हो Bear the burdens of other people. और दूसरों का बोझ हमें उठाना चाहिए Bear the burdens of other people. और दूसरों का बोझ उठाना चाहिए। Now, ladies are going here and there to receive some blessing or other. कई बहनें जाकर दूसरी और अनेक तरह के आशीषों को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ चलती Where to रहती get है। peace? कहाँ शांति मिलती है Where to get deliverance? और कहाँ छुटकारा मिलेगा? The Lord has made you as a shining light, bear their own burden. प्रभु ने आपको एक चमकता हुआ नक्षत्र के रूप में बनाया है जिससे कि आप फल दे। EPG is to bear the burden of others. इससे प्रार्थना समूह का मतलब है दूसरा का बोझ उठाना। In the year 1986, I lost my only और daughter. 1986 में मैंने मेरी बेटी को खो दिया, इकलौती I बेटी, was broken hearted. और मैं पूरा टूट चुकी थी उस समय I never wanted to follow the Lord afterwards. और मैं उसके बाद प्रभु का अनुगमन नहीं करना चाहती थी। But in the year 1988, the Lord came and spoke to me. परंतु 1988 में प्रभु मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे बात किया You start EPG. कि तू इससे प्रार्थना समूह को शुरू I कर। don't know what to do. मुझे मालूम नहीं क्या So करूं। many ladies are crying with agony. और कई इस संसार में बहनें जो रो रही है They are in darkness. वो अंधकार में हैं। They don't know which way to turn to. उनको ये नहीं मालूम कि किस तरह जाना है। I am choosing you to start such group to bring them all to the light. मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा एक समूह शुरू करे जो ऐसे लोगों को मेरी तरफ लेकर आए। See, I was in tears. मैं रो रही थी, And the Lord said, परंतु प्रभु ने कहा you make the other people to come out of all their burden. कि दूसरे लोगों को बोझ से तू बाहर निकाल प्रार्थना के द्वारा। If you read Isaiah chapter 61, verses 1 to 3, अगर आप यशायाह 61:1-3 तक पढ़ेंगे, the Lord says, the Spirit of the Lord God is upon me, और प्रभु यीशु की जो आत्मा मेरे ऊपर है, because the Lord has anointed me. क्योंकि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। So, the same thing is given to you. इसीलिए यही आशीष प्रभु आपको भी दे रहे So, हैं। why we are filled with the Holy Spirit? हमें क्यों पवित्र आत्मा से भरा रहना चाहिए? There are so many things written in here. और यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ To है heal the broken-hearted, कि टूटे हुए हृदय वालों को चंगा करे to proclaim liberty to the captives, और जो बंदी है उन लोगों को सुसमाचार सुनाए and the opening of the prison to those who are bound. और जो बंधे हुए उन लोगों को छुटकारा दिलाए। Like that, many things are mentioned और there. इस तरह कई बातें यहाँ पर लिखी हुई So है। you are chosen to deliver people who are in darkness. इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है कि अंधकार में जो लोग हैं उनको छुटकारा दिलाए, Those who are bound should be delivered. जो बंधे हुए लोगों को उनको छुटकारा दिलाए। Unless you are filled with the power of God and the strength of God, you will not be able to do that. अगर आप प्रभु की आत्मा और उसके बल से नहीं भरे होंगे आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। When you are filled with the Holy और Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे you will हैं receive the strength from above. आपको स्वर्ग से शक्ति मिलेगी। Acts chapter 1 verse 8 says so. प्रेरितों के काम 1:8 इस तरह से कहती है, You are strengthened in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत हो Then गए, you will be able to strengthen other people. इसीलिए आप दूसरों को बलवंत कर सकेंगे। See my life. मेरे जीवन को देखिए, Lost my daughter. मैंने मेरी बेटी को खो दिया, I was burdened. मैं बोझ से भरी हुई थी। I thought I will never do the work of the Lord. मैंने सोचा कि मैं कभी प्रभु का कार्य नहीं कर पाऊंगी।
When the Lord spoke to me about प्रभु EPG, ने जब मुझसे एस्तर प्रार्थना समूह के बारे में बात किया I just followed the Lord's will. और प्रभु की इच्छा के अनुसार मैंने अनुगमन And किया immediately I went here and there. Prayer means only few people will come. और प्रार्थना का मतलब है सिर्फ थोड़े ही लोग आएंगे Few people, 8 or 10 sisters came forward. और उस समय सिर्फ 8 या 10 बहनें आई Started praying the EPG. और हमने एस्तर प्रार्थना समूह में प्रार्थना See शुरू किया now, so many thousands are praying. अभी हजारों बहनें प्रार्थना कर But रही है everyone should have this burden. और प्रत्येक जनों के में मन में ऐसा बोझ होना That's चाहिए the same thing the Lord said. You tell my people that they should have the burden to pray for other प्रभु people. ने यही मेरे से कहा कि हर एक के मन में ऐसा बोझ होना चाहिए जिससे कि वो दूसरों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर To सके heal the broken hearted. जिससे कि टूटे हुए हृदय वाले को चंगा करे To console those who are mourning. और जो विलाप कर रहे हैं उनको सांत्वना दे Proclaim liberty to the captives. और जो बंधे हुए लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाए So prepare yourself. Ministry is coming to you very soon. आप अपने आप को तैयार कीजिएगा परमेश्वर की सेवकाई आपके पास आ रही People है will be coming to you hereafter. और आज के बाद लोग आपके पास आएंगे Oh, she is praying in the EPG. ये जो महिला है इससे प्रार्थना समूह में प्रार्थना I करती am है broken hearted. मैं टूटी हुई हूँ Let me go to her. मैं इसके पास जाके प्रार्थना She will करवाऊंगी pray for me. वो मेरे लिए प्रार्थना Through करेगी her I will be strengthened. और उसके द्वारा मैं बलवंत होंगी What I am saying, it's going to happen in every one of your life. और मैं जो कुछ कह रही हूँ आप प्रत्येक जनों के जीवन में सच होगा See the strength of the Lord today. आज के दिन प्रभु के शक्ति को पाइएगा That's why the Lord has sent me today. इसीलिए प्रभु ने आज के दिन मुझे यहाँ पर भेजा है Strengthen my people. कि मैं अपने लोगों को बलवंत करूं Strengthen my people. मेरे लोगों को बलवंत कर Receive the power of God. आप प्रभु की आत्मा को प्राप्त कीजिएगा Globally, darkness will be removed from your life. और आपके जीवन में सारा अंधकार दूर हो जाएगा And you will be a shining light. आप एक चमकता हुए नक्षत्र बन जाएंगे Hallelujah. हालेलुया How to pray our prayer points. और कैसे हम प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करें When is the prayer point is given to you, जब प्रार्थना निवेदन आपके लिए दिया जाता है before that you prepare yourself to pray with a real burden for the people. सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा कि लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर सके Every point is given to you. और प्रत्येक निवेदन आपको दिया जाता है And take that point. आप उस निवेदन को लीजिएगा First portion, सबसे पहला भाग the problems of the women folk. और महिलाओं की समस्याएं के बारे में So many problems are there. 20 points. बहुत सारी समस्याएं हैं और हमने उनको 20 पॉइंटों में डाला है Sometimes you may be going through that हो problem. सकता है कि आप स्वयं समस्या में हो So many leaders are writing like that. और कई अगुवा मुझे इस तरह से पत्र लिखते हैं I myself is going through that कि problem. मैं स्वयं इस तरह से समस्या से होकर गुजर रही हूँ Second part is pray as the promise was given to you. और दूसरा जो प्रतिज्ञा वचन दिया गया है उसके अनुसार आपको प्रार्थना करना होगा You claim that promise. आप उस वचन को मांगिए Fear not. मत डरिए I am with you. मैं तेरे संग हूँ Be not dismayed. निराश मत हो I am your God. मैं तेरा प्रभु हूँ Cling on to these promises. आप इन सब वचनों को पकड़े रखिए When you pray, cling on to these promises. जब आप प्रार्थना करेंगे इस वचनों को पकड़े रखिए Claim that promise. प्रभु से उस वचन को मांगिए Third part of और it, तीसरा जो भाग है believe. भागिए Believe. मांगिए It's very, very important. ये बहुत अनिवार्य है Believe विश्वास that you कीजिए already received the blessing of कि God. आपको ये आशीष मिल चुकी है Every time you keep the prayer point in your hand, और जब भी अपने प्रार्थना निवेदनों को हाथों में you must रखोगे pray like this. आपको इस तरह से प्रार्थना करना होगा Think what all the problems ladies are सबसे having. पहले ये सोचिए कि महिलाओं के जीवन में क्या समस्या है Second, claim the promise was. दूसरा उस वचन को मांगिएगा And thirdly, तीसरा you should thank God. आपको धन्यवाद करना होगा प्रभु को It's already heard by the कि Lord. प्रभु ने उस प्रार्थना को सुन लिया है It is answered by the कि Lord. प्रभु ने उसका जवाब दे दिया है Your prayer time itself, God has brought some people out of that और problem. प्रार्थना के समय प्रभु कई लोगों को ऐसी समस्याओं से बाहर निकालते हैं अपनी सामत के द्वारा You have to conduct your prayer group like that. आपको इस तरह से अपना प्रार्थना समूह चलाना होगा Then if you do that, जब आप ऐसा your करेंगे prayer will be answered. तब प्रभु आपके प्रार्थनाओं का जवाब देंगे Same time, और उसी समय 3 o'clock you have started your group. आप 3 बजे प्रार्थना शुरू करेंगे 5 o'clock it's heard by the Lord. और 5 बजे प्रभु उस प्रार्थना को सुन लेंगे You accept that fact? क्या आप इसको स्वीकार करते हैं Hallelujah. हालेलुया The burdens of the sisters are gone forever. और बहनों का जो बोझ है दूर हो जाएगा My sister, we should pray like that. प्रिय बहनों हमें ऐसा ही प्रार्थना करना होगा See one sister, how she prayed with a burden for her
member. देखिए, एक बहन है जिससे अपने सदस्य के लिए बोझ के साथ प्रार्थना किया, This has happened some years back, और ये कई वर्ष पहले हुआ, and it was in the Sri Lanka. और ये श्रीलंका के जो देश में हुआ। One sister, EPG leader, was conducting her group with so much burden. और एस्तर प्रार्थना समूह की एक अगुवा अपना समूह को बोझ के साथ चला रही थी, In her group, one lady was delivering her child, और उस समूह की एक बहन बच्चे का जन्म देने वाली थी, but she could not deliver easily. परंतु वो सामान्य रूप से संतान को जन्म दे नहीं पा रही She थी, had pain, पीड़ा में थी, and bleeding also started. और रक्त बह रहा था, Was bleeding. और रक्त बह रहा था। Doctor said, डॉक्टरों ने कहा she may die, or baby may die. हो सकता है बच्चा या माँ दोनों में से कोई एक मर जाए। This leader brought all her members. और इस बहन ने सारे सदस्यों को लेकर The आई, same hospital, she found out a room, and they all cried out to the Lord with a word. और उस अस्पताल में एक कमरा उसने ढूंढा, और ये सारी बहनें मिलकर प्रार्थना करना शुरू हो गई। Lord, save my sister. प्रभु मेरी बहन को बचाइए, Save our sister. हमारी बहन को बचाइए, She should not die. उसको मरना नहीं She है, should live for your और glory. आपकी महिमा के लिए जीवन The जिए, child also should live. और वो बच्चा भी आपके नाम के लिए महिमा के लिए, They were going on crying and crying. और वो प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते Time रहे, was passing by. और समय बीतता गया, Any moment the lady may और die. किसी भी क्षण वो महिला मरने वाली थी। परंतु Prayer answering God heard that cry. प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले प्रभु ने प्रार्थना का जवाब दिया। Hallelujah. हालेलुया। What a blessed person you are. और आप कितने आशीषित जन हैं। When you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, prayer will be answered. प्रार्थना का जवाब मिलेगा। Matthew 21:22 says like that. मत्ती 21:22 इस तरह से कहता है, Whatever you ask in prayer, it will be given. आप जो कुछ मांगेंगे प्रभु देंगे। If you believe, you will receive it. विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा। John 11:40. यूहन्ना 11:40 इस तरह से कहता है। Mark 11:24. मरकुस 11:24 इस तरह से In कहता all है। these verses we can see इन this. सारे वचनों में हम देखते हैं, Hallelujah. हालेलुया, God heard the cry of that group. प्रभु ने उस समूह की प्रार्थना को सुना, Baby was delivered without any problem. और बच्चे का जन्म बिना किसी पीड़ा के हुआ, The sister also who delivered the baby also still she's living. और प्रभु ने उस माता को भी बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया। God wants to give the same burden to you. प्रभु आपको भी यही बोझ देना चाहते हैं। Then only you can shine for the glory. उसके बाद ही आप प्रभु की महिमा के लिए चमक सकते हैं। Then only you can fulfill the will of the God. उसके बाद ही आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today the Lord has brought all of you to fulfill His और will. आज के दिन प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hereafter, और आज के बाद you see the greatness of God in your own life. और आप अपने जीवन में प्रभु की महानता को देख सकेंगे। You will be a great comforter to others. आप दूसरों के लिए महान सांत्वना देने वाले होंगे। You will be delivering many people from आप sin, कई लोगों को पापों से छुटकारा देंगे, sinful activity. पाप में कार्य से छुटकारा देंगे। Bring them to the Lord. आप प्रभु के निकट लेकर आएंगे, That burden will be given to you. और यह बोझ आपको दिया जाएगा। Spend much time in the feet of God. और प्रभु के चरणों में ज्यादा समय बिताइए, Close communion with Him. और प्रभु के साथ निकटतम सहभागिता Receive रखिए, the power of God without measure. और प्रभु की सामर्थ अत्यधिक रूप से प्राप्त And कीजिएगा। ask Him and speak to Him. What is your will, Father, और today? प्रभु से पूछिए और मांगिए कि उनकी इच्छा आज के दिन के लिए क्या है, Fulfill His will. और उसकी इच्छा को पूरा कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Lord will use you as He wants you to be used. प्रभु आपको उस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से वो चाहते हैं इस्तेमाल करना। Hallelujah. हालेलुया। May God bless everyone. प्रभु आप प्रत्येक जनों को आशीषित Now करें। shall we pray? आइए अभी हम प्रार्थना Let करें। us all look to God. आइए हम प्रभु की तरफ देखें। Hallelujah. हे प्रभु, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Father, हे पिता, come, Father. आइएगा, You're already here. आप यहाँ पर हैं। Lord, touch the hearts of your children. अपने बच्चों के हृदय को छूइएगा, Those who are still in और darkness. जो अभी भी अंधकार में हैं, Remove all the और darkness. सारा अंधकार दूर कीजिएगा, Remove all the darkness. सारा अंधकार दूर कीजिएगा, All come to the light. सब ज्योति में The आए, light Jesus. और प्रभु यीशु की ज्योति में आए। Jesus. यीशु, Let them come to Jesus. यीशु के पास आए, Lord, change their nature. उनके गुण को बदलिएगा, Change their heart. उनके हृदय को परिवर्तित Make कीजिएगा, them your children. अपना संतान बनाइए, Cleanse them, Lord, from their sin. और पापों से शुद्ध कीजिएगा, Make them a new person. नया व्यक्ति बनाइएगा। Lord, bring them into your हे life. प्रभु, आप अपनी ज्योति में लेकर आइए, Everyone. प्रत्येक जनों को, Touch everyone. प्रत्येक जनों को Bring छूइए, them to your fold. आप अपने चरणों में लेकर Let आइए, them not go back to the और आज world. के बाद ये फिर से वापस संसार में नहीं जाए, Thee. आपके पास आए, Let them come
back to the आपके पास वापस आए, the new life. उनको नया जीवन दीजिए अभी Now, अभी। not even one should not be और saved. एक भी बिना आपके उद्धार प्राप्त के नहीं जाना चाहिए। Everyone should be saved right प्रत्येक जनों now. को इसी वक्त उद्धार से भर दीजिएगा Everyone should come to the light right और now. प्रत्येक जन इसी वक्त प्रभु की ज्योति में आए। Thank you. धन्यवाद प्रभु, Thank you. धन्यवाद प्रभु। You are doing आप that. ये कर रहे हैं, You are bringing that. आप उनको लेकर आ रहे You हैं, are doing that. आप कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, for your saving power. आपके उद्धार करने की शक्ति का Hallelujah. धन्यवाद। What हालेलुया, a great thing, Lord. आप कितना महान हैं। You shed your blood on the आपने cross अपना लहू क्रूस के ऊपर हमारे खातिर बहाया just for saving these thy और children, इन लोगों को बचाने के लिए, making them your children. इनको अपनी संतान बनाने के लिए Bring everyone. प्रत्येक जनों को लेकर आइए। Make them your children. आप अपनी संतान बनाइए। Hallelujah. हालेलुया। Not even one should go back home without receiving the salvation. और एक भी बिना आपके उद्धार को प्राप्त किए यहाँ से नहीं जाना चाहिए। Touch, Master. छूइएगा, Touch their heart. उनके हृदय को The छूइएगा, hard hearts. उनके कठोर हृदय को छूइएगा। Make them your children. आप अपनी संतान बनाइए। Yes, they are chosen to do your ministry. हाँ, Father. ये आपकी सेवकाई को करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Use them for your आप glory. अपनी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। Lord, fill them with your आप power. अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Power of Jesus. प्रभु यीशु की सामर्थ Right now. इसी Right वक्त, now. इसी वक्त। Lord हे Jesus. प्रभु यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Fill. भरिए, Fill. भरिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Make them just like you. आप अपने रूप में बनाइएगा Fill them more and more and more. और आप ज्यादा और ज्यादा भरिएगा। Power of God. प्रभु की सामर्थ Gifts of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान Everyone. प्रत्येक जनों को, They should shine for your और glory. वो आपके नाम की महिमा के लिए चमके Like और disciples. यीशु के शिष्यों के They समान, should shine, Master. और वो चमके Let them all shine in the days to और come. आने वाले दिनों में ये चमके। Let your power come upon them in a new हे way. प्रभु, आपकी जो आत्मा है नई तरह से इनके ऊपर आए With all the nine gifts of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है Use them from today. आज के दिन से इस्तेमाल कीजिए Anoint them in a new way. और नए रूप से अभिषेकित कीजिएगा। Thank you for blessing your children. आशीषित करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you all the glory. और सारी महिमा आपको देते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Jesus' name. यीशु के नाम से मांगती हूँ। Amen. आमीन, Amen. आमीन।